Okay, good morning everyone. And as I told you that today I am going to start your revision work of English. और इसी में बीच में टाइम निकाल के हम लोग राइटिंग स्किल्स को भी बीच बीच में करते जाएंगे. आई थिंक इन दिस क्लास 4 राइटिंग स्किल्स मेनली यूज टू डील अबाउट जो राइटिंग स्किल हमें प्रैक्टिस करना है क्लास 4 में, वो है आपका लेटर राइटिंग, डायरी एंट्री, नोटिस राइटिंग, स्पीच राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग. हाफ ईयरली के बाद और हाफ ईयरली के पहले I think four paragraphs are there. One is sportsmanship, second is importance of festival, India of my dream, and health is well. One more paragraph is there. ये चार तो मैं शायद करवा चुकी हूँ, है ना वंशिका? Vanshika, do we have done these 4 paragraphs? India of my dream. Vanshika? Radhika, unmute. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, which 4? We have done India of my dream, importance of festival, health is wealth, and sportsmanship. ये 4 पैराग्राफ हम कर चुके हैं ऑलरेडी. एक और I hope which we have to do that we will do in our revision period. इस revision की period में ही वो करेंगे. That is an ideal student. It is mentioned in your syllabus also. तो this first ideal student मैं तो लिखवाऊंगी, but I would suggest that you should also try. आप भी कोशिश करेंगे कि आप लोग पहले खुद से लिखेंगे ideal student, because you are students, है ना, and you better know how a student must have what the best qualities you should inculcate yourself. ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो. Anyways, so if I'm talking about revision, the first unit is about sports. Open that chapter, sports. And if we are talking about sports, then the most important quality which we have to explain or discuss in our class is sportsmanship. So who is going to tell me about sportsmanship? Who understand what is sportsmanship? Who wants to answer? And Anitya, you want to answer? What is sportsmanship? I have unmuted. Unmute yourself, Anitya. Yes, Unmute. ma'am. What is sportsmanship? Yes, ma'am. To understand from sportsmanship, क्या समझते हैं आप? Sportsmanship. Sportsmanship needed their self-control, positive attitudes, courage, and they should play. They should practice. They practice they practice playing game, and they play, but they do not give grief when they will not win. Students, you can not only Anitya, everyone should participate. This is a revision class. तो हाथ सभी बच्चे उठाएंगे, एक दो बच्चे ही नहीं. अदिति, कुमारी अदिति, unmute करो अपने आप को. Can you tell me what do you understand from sportsmanship, Aditi? Unmute करो अपने आप को, Aditi. What is sportsmanship, Aditi? Answer, Aditi. अदिति को आंसर करना है. Anusha, what is sportsmanship? Anusha, what is sportsmanship? Anusha, बताओगी? No. It's okay. So very nicely explained by Anitya Dias. So sportsmanship is a quality which every sportsman should have in his life. If he is a sportsman, he must have a disciplined lifestyle, है ना? एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन वही होता है जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, उसकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन होती है,
उसको सेल्फ कंट्रोल, यानी अगर बोला जाए तो स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब ही होता है सेल्फ कंट्रोल, पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटी, है ना, these all things used to refer to a sportsmanship. टीम स्पिरिट का मतलब क्या? टीम स्पिरिट का मतलब a person who always used to think about his team, है ना, विनिंग ऑन। स्पोर्ट्समैनशिप में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? विनिंग और लूजिंग डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द पार्टिसिपेशन, ठीक है, दैट इज sportsmanship. So I have written a question over here. You can see here. Have you ever been jealous of your friend? Everyone among you are having friends. Like all the feelings or emotions, jealousy is also a natural feeling which every human has in himself or herself. हर एक इंसान में ये ईर्ष्या या द्वेष की भावना, जैसे हंसना रोना, है ना, किसी को खुश देख के खुश होना, किसी को दुख होके दुखी देखने पे दुख होना, या फिर चोट लगती है तो रोना आता, दीज आर द नेचुरल फीलिंग्स, एक इमोशन है ना, डर लगना, घबराना, these are natural emotions which every human has in himself. Like that, there is a feeling also called jealousy. Jealous, है ना? Jealousy का मतलब होता है ईर्ष्या, किसी को देख के, किसी की तरक्की को देख के, किसी के अच्छाई को देख के कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है, दैट इज जेलसी। अब यह क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन, फ्रेंड्स एवरीवन, है ना, एक दो तीन चार, मोर देन, that depends on person to person or vary person to person, दोस्त सबके लाइफ में है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या दोस्त, हैव यू एवर बीन जेलस ऑफ फ्रेंड, अपने दोस्त से, अपने मित्र से कभी आपको ईर्ष्या हुई है? लेट मी अनम्यूट somebody and he or she will give me the answer. Navya, Navya, Yes, ma'am. have you ever been jealous of your friend? If yes, then why? No, ma'am. Grishan, Grishan, No, ma'am. okay, now Yes, Grishan, ma'am. have you ever been jealous of your friend? कभी दोस्त से No, दोस्त ma'am. नहीं हुई है? सच बोल रहे हो? कभी Yes, ma'am. क्लास में मैम नहीं हुई है। आदर्श स्माइल कर रहा, आदर्श, आदर्श को हुई है। आदर्श पाल 4D, अनम्यूट करो बेटा, अपने आप को अनम्यूट करो। ही इज गिविंग अ वेरी नाइस स्माइल, है ना? आदर्श कीप स्माइलिंग, यू आर पॉजिटिव। आदर्श आपकी स्माइल बहुत पॉजिटिव है बेटा, आपको हंसता देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कीप स्माइलिंग, है ना, कभी कभी वाइब्स बहुत आता है तो आप सभी बहुत पॉजिटिव वाइब मिली। ओके आदर्श, आदर्श का भी किसी, ऑब्वियसली आप सारे बच्चे हो, है ना, ये जनरली अभी आप क्या है, आप हो सकता है कि खुश हो रहे हो, लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है क्लास में, अभी जब अगर रियल क्लासरूम में होते हैं, या हो सकता है अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये फीलिंग आ रही हो कि मैम मुझे तो कभी अनम्यूट ही नहीं करती हैं और हर वक्त अनध्या वो करती हैं, ये भी एक तरह का जेलसी ही है। जेलसी का मतलब ये थोड़ी होता है कि पीट रही हैं या फिर कोई बहुत ड्रास्टिक इमोशन, नो, सो इट्स अ क्वाइट नेचुरल इमोशन। अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात, अगर हुआ है तो इट्स नॉट अ ब्लंडर, इट्स नेचुरल होता है। एक मनुष्य है हम लोग लिविंग बीइंग्स हैं, वी ऑल आर हैविंग गुड क्वालिटीज एज वेल एज द बैड क्वालिटीज इनसाइड अस। हमारे अंदर अच्छी और बुरी दोनों ही भावनाएं हैं, है ना, दोनों ही पक्ष है। हम पे ये डिपेंड करता है कि हम किसको डोमिनेट करना चाहते हैं, यानी किसको दबाना चाहते हैं, और किसको हम उजागर करना चाहते हैं, है ना। गुड क्वालिटीज मस्ट बी मोटिवेटेड, वेयर एज बुरी बातों से अपने आप को हमेशा बचाना चाहिए। तो अभी
हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर बुक के साथ रिवीजन करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, यस। दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप. 4 blurbs are already given. I think सब लोगों ने लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा है तो यू कैन राइट हियर टीम स्पिरिट. यहाँ टीम स्पिरिट लिख सकते हो, डिसिप्लिन लिख सकते हो सेकंड बॉक्स में, और यहाँ ऑनेस्टी लिख सकते हो, सेल्फ कंट्रोल लिख सकते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड लिख सकते हो. कोई भी 5 मैंने बताया अभी आपको, 5 में से कोई भी 4 आप लिख सकते हो. टीम स्पिरिट, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन. Discipline and team spirit must be for these two are very necessary for the quality of sportsmanship. ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग. Have you ever felt, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, most of the students are having that. Now we are not jealous of friend. अगर आप ऐसा करते हो, you all are very sweet. आप बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ऐसा आप लोगों को करना ही चाहिए, है ना? नाउ कम्स द स्टोरी. जो न्यू स्टूडेंट सेशन के मिड में या फिर बाद में आए हो, वो लोग अब स्टोरी समझ सकते हो. मैं पैराग्राफ या लाइन वाइज आपको नहीं समझा रही हूँ, है ना? रिवीजन का मतलब होता है क्विकली हम लोग एक समराइज्ड वे में इसको हम लोग देखेंगे. सो स्टूडेंट, दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2 boys, दोज हु आर फ्रेंड. ये दोनों दोस्त हैं, राहुल और राज. ये 2 बच्चे हैं जो क्लास 4 के स्टूडेंट हैं. राज, वेरी गुड फ्रेंड्स, है ना? राहुल was good at sports but poor in studies. दोनों बच्चों की अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज हैं, जिनमें राहुल की खासियत थी कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा था लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं था. जबकि जो दूसरा बच्चा है राज, राज was good at both. और ये फ्रेंडशिप है तो हर बार क्या होता था, राज ऑलवेज मैनेज टू विन. कुछ भी जब इनका साइकिलिंग कॉन्टेस्ट वगैरह होता था तो उसमें हमेशा राज जीत ही जाता था. धीरे धीरे क्या हो रहा था, और दूसरी तरफ ये पढ़ाई में भी अच्छा था. अच्छे दोस्त होने के बावजूद राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज. राहुल को धीरे धीरे अपने फ्रेंड से जेलसी होने लगी, और ये जो जेलसी की जो बैड फीलिंग इसके अंदर जग चुकी थी, नाउ व्हाट इट रिजल्टेड, इसने डिसाइड कर लिया. इसी बीच ये जो जलन की भावना आ गई थी राहुल में ना, दैट वाज सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप. जो दोस्ती थी, जो मित्रता थी, उसको कहीं. पानी हु इज टॉकिंग? म्यूट कर लो, म्यूट करके तब बात करो. ओके, द स्पोर्ट्स डे वाज देयर. इसी टाइम स्कूल में होने वाला है, और ये दोनों ही दोस्त उसमें पार्टिसिपेट करना था. किन में? एथलेटिक्स में. ठीक है, इनके बीच कॉन्टेस्ट होता था साइकिलिंग का, जिसमें राज जीतता था, लेकिन एनुअल डे के वक्त इन्हें पार्टिसिपेट करना था एथलेटिक्स में. राहुल वॉज डिटरमाइंड. अभी राहुल को लगा कि इसे ये वाला जो कॉन्टेस्ट है, जो जिसमें ये दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसको किसी भी तरह से राज को हराना था. He started taking lesser. अब ये जो अंदर जेलसी की जो इसकी फीलिंग बढ़ती जा रही थी राज से राहुल का, ये क्या कर रहा था ना, धीरे धीरे राहुल started making himself little bit introvert, है ना? He was not very much comfortable in talking with his friend राज. वो राज से बात भी कम करता था, उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसको लगता था ये तो मुझे हर बार हरा देता है, हर बार यही जीत जाता है. तो अभी इसने डिसाइड किया कि किसी भी कीमत पे ये राज को हराएगा स्पोर्ट्स डे के वक्त. तो इसने क्या किया, जिस एथलेटिक्स टूर्नामेंट में जिस पाथ पे इनको दौड़ना था, तो राज का क्या हुआ, राज जिस पे ही वाज सपोज्ड टू रन, इसने क्या किया, राहुल ने उसी
जगह जहां से राज को दौड़ना था, इसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा, है ना, यहाँ देखो। ही डिग स्मॉल पिट, पिट का मतलब होता है होल, ठीक है, पिट का मतलब होता है होल। और जिस रास्ते से राज को दौड़ना था, इसने वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदा। He covered it with leaves and went back to his classroom. उसने उस गड्ढे को सूखे पत्तों से छिपाया और अपने क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। When the race started, राज और हमेशा की तरह राज जब रेस शुरू हुआ तो राहुल से काफी आगे वो था, है ना, अहेड का मतलब आगे। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय बाद क्या हुआ, राहुल ने जो गड्ढे खोदे थे उसके अंदर राज का पैर चला गया और ही वॉज सीरियसली इंजर्ड। सीरियसली का मतलब होता है गंभीर, है ना, बहुत बुरी तरीके से। इंजर्ड का मतलब होता है चोट लगना, घायल हो जाना। उसको चोट लगी और वो घायल हो गया। राहुल took him. He was very happy as his plan had worked and he had won the first prize. राहुल तो उस गड्ढे में गिर चुका था, इस वजह से क्या हुआ, अब कौन जीत रहा था? इस जो प्लानिंग राहुल ने की थी, नाउ ही इज फीलिंग दैट ही इज सक्सीडेड, वो वहां सक्सेसफुल हो चुका है। और अभी क्या था, ही वॉज मूविंग अहेड ऑफ राज, राज से भी वो आगे बढ़ रहा था। He was very happy that his plan has worked and he won the first prize. रिजल्ट क्या हुआ, ये प्राइज जीत गया, ठीक है। कुछ देर के तो उसे बड़ी खुशी हुई जान के, है ना, कि नाउ ही हैज डिफीटेड राज। अब ये चीटिंग से जीता या किस चीज से जीता, कुछ पलों के लिए राहुल को लगा कि एवरीथिंग इज ओके। जो इसको चाहिए था, जिस वजह से उसने ये प्लानिंग की राज को हराने के लिए, राज हार चुका था और ये जीत चुका था। तो ही वॉज वेरी मच हैप्पी फॉर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद राहुल को ये फीलिंग आने लगी कि रिग्रेटिंग हिमसेल्फ, अपने ऊपर। चंद्रभूषण, मुझे आपकी टीवी टीवी नहीं देखना है चंद्रभूषण, है ना, बुक देखो, बुक देखो। He started feeling that he deserved the trophy as he had cheated and had hurt his best friend. कुछ समय बाद इसको रियलाइज हुआ कि whatever he has done to his best friend was not correct, and जिस कारण से भी इसने अपने फ्रेंड को फ्रेंड से चीट किया, उसको हराया, was not correct. So now he started regretting on his way of defeating Raj. Regret का मतलब करते हैं अफसोस करने को, ठीक है। He could not sleep properly. उस रात पूरी तरह से ये सो भी नहीं पाया। Next morning he went to the principal room. वो प्रिंसिपल के पास गया। He opened the door and said, "Excuse me, sir, could I speak?" Excuse me, sir, could I speak to you for a while? क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? Inside he admitted that he had dug the pit in which, और इन्होंने क्या किया, अपनी गलती को प्रिंसिपल के सामने में कन्फेस कर दिया, ठीक है, अपनी गलती मान, इनसे गलती हुई। प्रिंसिपल ने बहुत खुश तो नहीं होंगे, बट हाँ, उसके इस ऑनेस्ट एफर्ट के लिए उसको कुछ देर के लिए माफ जरूर किया। उनको ये वार्निंग मिली कि आप आगे से ऐसा नहीं करेंगे अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद क्या हुआ, राहुल वेंट टू राज एंड अपोलोजाइज टू हिम फॉर द कोर ऑफ हिज हार्ट। बहुत मन से, सच्चे मन से इन्होंने राज से भी माफी मांग ली, है ना। राज से माफी मांगने के बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इनको बहुत व्हाट सेकंड, दिस इज योर लास्ट चांस इफ यू डू नॉट ओके। कुछ ही दिनों बाद क्लास टेस्ट हुआ जिसमें राहुल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, और इस वजह से प्रिंसिपल ने ये वार्निंग भी दी थी कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो ही इज गोइंग टू पनिश हिम, है ना, पनिशमेंट मिलेगी।
तो राहुल को बड़ी शर्मिंदगी आई, शर्म आई। अशेम्ड का मतलब होता है शर्म आना। एंड ही क्राइड बिटरली। राज here came to him and said, Rahul, do not worry. This is just a class day. So, like true friend, Raj उसको कंसोल किया कि रोने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप अपने आप को सुधार सकते हो, ठीक जी है ना, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज ये तो सिर्फ एक क्लास टेस्ट है। तो इसके बाद राज ने राहुल को प्रॉमिस किया कि वो उसको पढ़ाई में हेल्प करेगा। और जब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तो राहुल was very happy. Why? Because he did not only top in the class but also beaten Raj as well. राज को भी इसने बीट किया था। बीट मतलब यहाँ पे मारना नहीं होता है, यहाँ पे मतलब उसको उससे भी ज्यादा मार्क्स इसने लाए। राज was the first one to congratulate him. राज सबसे पहला इंसान था जिसने राहुल को उसकी सफलता पे congratulate किया. Indeed, it was the happiest day of Rahul's life. He thanked who had stood second. है ना? His principal was also very happy for their result. After this, Rahul and Raj remained true friends. ना? इस घटना के बाद क्योंकि राहुल को रियलाइज हो गया कि राज उसका बेस्ट फ्रेंड था, है ना, इसने उसके साथ धोखा किया लेकिन फिर भी उसने उसे उसकी पढ़ाई में मदद की। तो नाउ ही रियलाइज कि व्हाटएवर ही हैज डन विथ राज वाज नॉट करेक्ट। आफ्टर दैट राहुल एंड राज रिमेन ट्रू फ्रेंड्स और एवर, वो हमेशा के लिए सच्चे दोस्त बन गए। ये स्टोरी थी हमारी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस। राहुल वाज जेलस ऑफ राज बिकॉज ही always won in cycling. So this cycling. correct. The correct answer is always won in cycling. Born Next. in cycling. Correct. Rahul dug a small pit on the path because he wanted to Win the race. Win the race. very good. Win the race. Next, Rahul worked hard for the term in examination because The principal had given him a warning. warning. अभी तक जो लोग अनम्यूट हो, अब अपने आप को म्यूट कर लो क्योंकि बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जो लोग अभी तक अनम्यूट थे वो लोग अब म्यूट कर लो अपने आप को। राजकुमार अपने आप को अनम्यूट करो। राजकुमार अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। शौर्य कुमार सोनी अभी अनम्यूट कर लो अपने आप को। डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। मैं फिर बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो लोग अपने आप को इस वीडियो में देखोगे ही, आई डोंट नो देखोगे कि नहीं, तो क्योंकि तुम लोगों का व्यूज बहुत कम रहता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, सुनेंगे, जिनका भी इनकम्प्लीट है वो लोग कंप्लीट करते जाएंगे। डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट। हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन? राजकुमार, whom is he talking to? Raj. Don't worry, this is just a And class. Rahul said to Rahul. One second. Are you going to write your answer like this in the examination? No. Are you? Raj is a speaker. Correct. Raj is a speaker line. Of the above line. Talking with Rahul. Raj is a speaker talking with Rahul. राजकुमार, जब आप अनम्यूट रहे Yes, ना, ma'am. तो आसपास में थोड़ा सा शांति देखेंगे अगली बार से, ठीक है? So, Okay, ma'am. the new student, those who haven't written the answers, just write down. Raj is the speaker of the above line and he is talking to Rahul. He is talking to Rahul. Now next.
Why is the listener worried? Why is the listener worried? The listener is worried because principal has given him warning. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सौर्या, आपकी आवाज अगर आपके आसपास शांति नहीं है तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को. ठीक है. What does the statement tell you about the speaker's character? स्पीकर के कैरेक्टर के बारे में क्या बता रहे हैं? ये जो ऊपर वाला लाइन है, इसको पढ़ने के बाद डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ क्लास टेस्ट. What does the statement tell you about speaker's character? ये पढ़ के आपको क्या लगता है? ये लाइन क्या बता रहा है? चंद्रभूषण, अनम्यूट कर लो अपने आप को. चंद्रभूषण, अनम्यूट करो अपने आप को. You have to give the answer. What does the statement tell you about speaker's character? Chandrabhushan, unmute karo. What will be the answer, Chandrabhushan, of number 3? What does the statement tell you about speaker's character? ये जो लाइन राज बोल रहा है, The statement tells us that the speaker is kind-hearted and helpful in nature. Correct. Very good. I hope आप ईमानदारी से आंसर कर रहे हो, चंद्रभूषण. और very good. Now just mute yourself. Mute yourself. So the above statement tell us, या फिर the above statement mention us that the speaker is kind-hearted and helpful in nature. The speaker is kind and helpful in nature. जो लोग नहीं लिखे हो, ये उन्हीं के लिए है. Complete the dialogue between Raj and Rahul. ये तो सब लोगों ने कर लिया होगा. ये किया है सब लोगों ने? किया है. ओके. जो लोग नहीं किया है तो फिर मैं कोशिश करूंगी ग्रुप में भेजना. ठीक है. नेक्स्ट इज who is going to write the answer? चित्रांश लिखोगे? वंशिका, अनम्यूट करके आंसर बोलो. Why was Rahul not happy even after winning the race? Rahul was not happy even after winning the race because he has hurt his best friend Rahul and cheated in the race. Correct. Rahul was not happy even after winning the race because he had cheated his best friend and win the race. He had cheated his best friend and won the race. Won the race, not win. Won the race. W-O-N, won. Now, second question is, do you think Rahul deserved the trophy? Give a reason for you. राहुल ने जो ट्रॉफी जीती थी, क्या वो डिजर्व करता था? और अगर करता था तो क्यों डिजर्व करता था? और अगर नहीं करता था तो भी वो क्यों नहीं करता था? So you should write here, Rahul does not deserve the trophy because he had cheated his best friend. He has cheated his best friend. He had cheated his best friend. Next, what warning did principal give Rahul? What warning did the principal give Rahul? Principal had told Rahul to perform well in the term in examination. Daksh and Rishima, what is happening?
Why was everyone surprised to see the term in examination? Everyone was surprised. ये आंसर कोई बोलेगा? आकृति बोलेगी? आकृति? Yes, ma'am. Can you answer this question? Why was everyone surprised to see the term in examination? See, When test. the term and examination result was when the term and examination result was announced, everyone was surprised to see that Rahul had not only topped the class but beaten Raj as well. Very good, but little bit careful. You should write that everyone was surprised to see the term in examination because Rahul had not only topped but beaten Raj as well. Rahul had not only topped in examination but had beaten Raj as well. Next है match words having opposite meaning. Rivals. मैच करो, जो लोग कर चुके हो गुड, जो लोग नहीं किए वो लोग करो. Rivals, friends. Good, bad. Good, bad. Somebody is talking. Somebody is talking. Happy, sad. Happy, sad. Hard, soft. Hard, soft. Bitter, sweet. Bitter, sweet. Now we have to fill the blanks with the words we have written in our previous exercise. The principal congratulated Rahul for his good performance. Yes, good performance. Good performance. Shaila is very dash as her brother is from America today. One second. Shaila is very dash as her brother is coming from America today, and the correct answer will be happy. The mechanic hit the bolt. क्या लिख सकते हैं इसमें? Hard. The mechanic hit the bolt hard. H-A-R-D. Hard. With his hammer and broke it. India and Pakistan are great rivals. Are great rivals. India and Pakistan are great rivals. Traveling in a ship was a dash experience, bitter experience. Bitter. B-I-T-T-E-R. Bitter experience. राजकुमार, कल सेकंड करवाऊंगी रिवीजन और उसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तुम ही लोगों से होगा. यश वैष्णव, मानस झा एंड राजकुमार, कल सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं तुम ही 3 बच्चों से पूछने वाली हूँ. यश वैष्णव, यश, रोशनी, वेयर इज योर बुक? Am I chanting any prayer? Now next is traveling in a ship was a bitter. ये हो गया.